प्रत्येक गुरु के आपने शिष्य देखे होंगे कि वो गुरु के प्रत्येक शिष्य उनकी प्रत्येक सेवा करते हैं, उनके कपड़े जमाने से लेके वो सब करते हैं। गुरु जी बाहर जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए मेरे सूटकेस से लेके मेरे पीने का पानी तक मैं अपना खुद का भर के ले जाता हूँ। मैं किसी से ये कहता नहीं कि मेरा पानी तुम भर के रख दो और फिर मैं ले जाऊँ। तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं किसी पर अवलंबित न रहूँ। तो आवश्यकता है कि ऐसा जीवन बने। कोई की गरज कैसी, तुम अगर मुझसे खुश हो गए तो मुझे क्या दे सकते हो? वो तो नहीं दे सकते जितना इसने मुझे दे दिया, वो तो कभी नहीं दे सकते। तो फिर मुझे तुम्हारी चावलों से तुम्हें प्रसन्न रखने की जरूरत क्या है? अवधूत महाराज को बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि कोई मेरे यहाँ आए तो उसको 100 बार उसका आदर है, स्वागत है, पर कोई अगर मेरे यहाँ नहीं आए तो उसका 1,00,000 बार स्वागत है, क्योंकि वो आकर मेरी साधना को ही भंग करेगा, वो आकर मेरे चिंतन को भंग करेगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति भले कम आएगा तो भी चलेगा, पर जितना आए उसका चिंतन जो है वो मेरा जैसा बने और उसके साथ बैठकर मुझे आनंद आए, तो मेरे लिए वो ठीक है। तो ऐसा सुंदर भाव है। अब कहाँ तक इसका चिंतन किया जाए? तो तीसरी बात मैं बता रहा था कि आपका धैर्य। महाराणा प्रताप हारी गया था और महाराणा प्रताप जारे जारे हार्या तो हारीने જોયું કે એક મકડી ચડે છે ઉતરે છે ફરી પડે છે ફરી ચડે છે ફરી ઉતરે છે પછી એક છેલ્લે ચડી જાય છે। તો એને જોઈને મહારાણા પ્રતાપને શિક્ષા મળી કે મારે 17 વખત ભલે હું હારી ગયો પર ફરી મેં પ્રયાસ કર્યો તો 18મી વખત પ્રયાસ કર્યો તો એ જીતી ગયા છે। એટલે ધૈર્ય અને તમારો પ્રયાસમાં ક્યાંય કમી ના હોવી જોઈએ એવો સુંદર ભાવ કોઈ પણ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ કરવા માટે ખૂબ આવશ્યક છે। તો આ સુંદર ભાવ અને એમાં જ રહીશું તો કથા સ્વાભાવિક છે કે આજે 5 તો બગાડી દીધા છે, 5:15। તો હવે આગળની કથા લઈએ કે આજે લાલા 3 મહિનાના થયા છે। હવે એમનો કરવટ બદલવાનો પ્રસંગ ચાલે છે કે આજે લાલાએ કરવટ બદલશે। તો સંપૂર્ણ નંદ ભવનમાં સુંદર આયોજન કર્યું। મૈયાને વિચાર્યું કે આ લાલાને લઈને ક્યાં ક્યાં ફરીશું, એટલે શકટની નીચે એક એ બનાવી પાલકી ઝૂલું। એ સમય તો એ ઝૂલા હતા, એટલે એ ઝૂલાની અંદર લાલાને સુવડાવ્યું અને પોતાના ઘરના કામમાં લાગી ગયા। તો એ સમયે કોઈ કંસ દ્વારા પ્રેષિત કોઈ રાક્ષસ છે, જો અસુર છે, એ આવીને શકટ ઉપર બેઠો અને એને દબાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો। લાલાએ પોતાનું નાનકડું પેડ લગાવ્યું શકટને, અને શકટ ઉછળ્યું છે આસમાનમાં અને પછી ધડામ કરીને નીચે પડ્યું, જેનાથી દબાઈને એ શકટ નામક અસુર જે છે મૃત્યુને પામ્યો છે। આ શકટાસુર ની મૃત્યુ થઈ। અનંતર પછી બીજા જે દૈત્યો છે એ દૈત્યો આવે છે। તો શકટાસુર પછી તૃણાવર્ત આવ્યો છે। આ તૃણાવર્ત વસ્તુતા એમાં કહેવામાં જઈએ તો આ શકટાસુર હિરણ્યાક્ષનો પુત્ર હતો અને મહર્ષિ લોમસનો શાપ લાગ્યો। એ બધું પછી કથા અવંતર કથા બહુ બધી છે, તો આપણે એ બધા સાંભળી લીધું છે, એટલે સંક્ષિપ્તમાં સાંભળીએ। પછી તૃણાવર્ત આવ્યું અને તૃણાવર્ત એક સમય મૈયા યશોદા ખૂણામાં લઈને બેઠી છે લાલાને, અને એ સમય વજન વધવા લાગ્યું લાલાનું, એટલે લાલાને ઉતારીને નીચે મૂક્યું અને ઘરના કામમાં લાગી ગઈ। એ સમય અવસર જાણીને તૃણાવર્ત એમને લઈને આસમાનમાં ગયો, આંધી રૂપમાં આવ્યો અને લઈને આસમાનમાં ગયો। ત્યારે ભગવાન એનો કંઠ પકડી લે છે, એનો ગળો પકડી લે છે। હવે તૃણાવર્તને થયું કે મેં એને પકડ્યું છે કે એ મને પકડ્યું છે? લાયો તો હું છું એને, પણ એ પકડી મને એવું રાખ્યું છે। અને લાલાએ એટલું જોરથી એનું ટેંકું દબાયું કે એના પ્રાણ પકડી ઉડી ગયા અને એનું શરીર ધરા ઉપર પડ્યું, જેનાથી એને પ્રાણ નીકળી ગયા। અને ધડામ આવા સાંભળીને યશોદા મૈયા અહીં રક્ષાવિધિ કરી એ બધા અસુરોનો વધ કરી રહ્યા છે। તો તૃણાવર્ત પાંડ્ય દેશનો રાજા છે, જેનું નામ સહસ્રાક્ષ છે અને મંદમાદન પર્વતની ગુફામાં તપસ્યા કરી રહ્યા છે। એ સમયે દુર્વાસાનું આગમન થયું અને દુર્વાસા એમને શાપ આપ્યું, ભગવાનના ચરણે સ્પર્શથી મોક્ષ થશે, એવું બધી કથાઓ। પછી હવે ભગવાનનું નામકરણનો પ્રસંગ ચાલે છે। તો ગુરુજી પાસે ગયા કે ગુરુજી ગર્ગાચાર્યજી એમના છે યાદવોના ગુરુ। ગુરુજીને કીધું કે ગુરુજી લાલાનું નામ રાખો, હજી સુધી નામ પડ્યું નથી। એટલે લાલાનું નામ રાખવા માટે એવી આપણી પરંપરા છે કે આપણે ત્યાં જે સંતાન હોય એ સંતાનનું નામ કોણ રાખે? આપણા પુરોહિત રાખે, આપણા આચાર્ય રાખે અને આપણા ગુરુ રાખે।
પણ અહીં ગુજરાતમાં મેં જોયું કે અહીંયા નામ ફઈ રાખે છે. ફોઈ ફોઈ બુઆ, એટલે બુઆને બોલાવવામાં આવે, તેડવામાં આવે કે બુઆ તમે એમનું નામ કરીને. બાકી એવી પરંપરા છે, શાસ્ત્ર જે કહે છે કે નામ રાખવાનો અધિકાર જે આપણા ગુરુજનોને હોય, સંતોને હોય, બ્રાહ્મણને હોય યા કોઈ પુરોહિતને હોય. અને નામ પણ કેમ કે એમને ખબર છે કે સાર્થક નામ કયો છે, આ જીવ માટે સાર્થક નામ કયો છે. નહીં તો કોઈ પણ નામ જે અજગમતું નામ રાખી દે અને જેનો કોઈ અર્થ પણ નહીં. અને અત્યારે ઘણા બધા એવા નામો છે કે જેનો અર્થ પણ ના નીકળતો હોય ને એવા નામ રાખેલા છે. कई ऐसे नाम रखे हुए हैं, जैसे एक पति पत्नी और अपने बच्चे को लेकर मेले में चले गए. अब मेले में तो चले गए, अब वहां पर क्या था कि वो मेले में ऐसी व्यवस्था थी, बहुत भीड़ थी, तो वो जो पति है उसका हाथ कहीं पत्नी से छूट गया होगा, वो कहीं और चला गया. अब पत्नी थी अनपढ़, वो कहा मैं मेरे पति को ढूंढूं कैसे. એટલે બધા मेले में ढूंढने लगी, पूछने लगे अरे पति कहाँ. तो वहाँ पुलिस चौकी बनी हुई थी. पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट कराई, FIR कि भाई मेरे पति खो गए, उनको आप ढूंढ दीजिए, अनाउंस कर दीजिए. तो क्या अनाउंस तो करें पर उसका नाम तो बताओ, तुम्हारे पति का नाम क्या है. तो कहा नहीं, हमारे इसमें रिवाज नहीं है नाम लेने का, हम लोग नाम नहीं बोल सकते. पुराने जमाने में अभी भी पति का नाम नहीं बोला जाता. कई लोग जो वहाँ के हैं गांव में, वहाँ पति का नाम, यहाँ गुजरात में तो बोलते हैं. हमने यहाँ नाम यही देखा कि यहाँ उन पति को गोपाल इधर आओ. मैं सोचा गोपाल कोई घर का काम करने वाला, अरे ये तो उनके पति हैं. मैं सोचा शायद भगवान का नाम रखा होगा, तो कहा नहीं, जन्म से गोपाल ही, जन्म से गोपी से. तो यहाँ पतियों का नाम लेते हैं, वस्तुतः नाम नहीं लिया जा सकता. तो उस स्त्री ने कहा नहीं, हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते, पति का नाम नहीं ले सकते. तो कहा अच्छा लिख के बता दो. कहा नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, लिख कैसे सकती, लिख तो सकती नहीं. तो कहा अच्छा ये तुम्हारे साथ छोटा बेटा है, ये बता देगा. तो बेटा सोचा कि मेरे पापा ने जरूर कोई लोचा किया, नहीं तो मेरे माई नाम बताते थे, मैं क्यों बताऊँ कि ना पापा है कहीं छोटू कर मारे पड़ता थे, क्यों नाम नहीं बताया. तो वो भी नाम नहीं बताया. अब पुलिस वाले समझे कि क्या कह रहा है. तो कहा आप ऐसे समझ लो, मैं संकेत देती हूँ, कुछ हिंट देती हूँ, उससे समझ लो. तो कहा ये कान से है नाम. तो कहा कानूराम, नहीं कानूराम. तो कांजी भाई, ना कांजी भाई नहीं. अत्यार में शोधतो ढूंढता ढूंढता वो पति आ गया. वहीं पर वो भी उसकी पत्नी को ढूंढ रहा था. और पत्नी को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे तू कहाँ चली गई थी, चल घर चले. अब वो हाथ पकड़ के ले जा रहा है, पर पुलिस वाले ने रुको भैया, तुम रुको. ये एक तो तुम्हारा नाम बताती नहीं, एक पढ़ी लिखी नहीं हो, ये तुम्हारी ये संतान है, ये भी बोलती नहीं. कभी तुम फिर से घूम जाओ तो तुम नाम तो लिखा के जाओ अपना. फिर से कभी छूट जाओ तो नाम लिखा के जाओ. क्या नाम है तुम्हारा? कि मेरा नाम है कंछेदी लाल. तो कहा ऐसा नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना, कंछेदी लाल. तो अच्छा हुआ तुमने बता दिया, नहीं तो फिर हमको तकलीफ हो जाती. तो ऐसे नाम कभी नहीं रखे जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जो हमारे जीवन में सार्थक हो, अर्थ के साथ. भगवान के नाम तो इतने सुंदर सुंदर है. सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणम विशेषागहरम प्रभु. सांकेत्यम, संकेत में भी यदि भगवान का नाम ले लिया जाए तो बड़ी पुण्यों की वृद्धि करता है. संकेत में भी मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि भाई राम जी मंदिर कहाँ है, ये उन परिचित का घर कहाँ है, तो आपने उसको बताया यहाँ से राम जी मंदिर तक जाओ, राम जी मंदिर से टर्न हो जाओ तो आपको आपके परिचित का घर मिल जाएगा. तो आपके मुख से राम जी मंदिर निकला तो वो भी पुण्य का भागी बनाता है. तो संकेत्यम पारिहास्यम वा, या हंसी मजाक में भी आपने भगवान का नाम ले लिया तो वो आपके पुण्य का कार्य. स्तोभम हेलनमेव हुआ, या फिर आपने लज्जावश के भाई सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े और कुछ नाम ले रहे हैं तो मैं भी ले लूँ, तो
तो ऐसा सोचकर भी यदि आपने भगवान का नाम लिया है तो भी पुण्य देने वाला होता है। तो ऐसा भगवान के शुभ नाम रखने चाहिए और आचार्य से रखवाने चाहिए। तो यहाँ पर गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया है, पर गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं यदुवंशियों का गुरु हूँ, यदि तुम्हारे घर पे आऊंगा तो कंस को डाउट हो जाएगा कि तुम्हारे यहाँ संतान हुई है, इसलिए मैं डायरेक्ट तुम्हारे घर पर नहीं आता हूँ, मैं तुम्हारी गौशाला में आता हूँ और तुम अपने बालकों को लेकर वहां गौशाला में आ जाओ। तो गौशाला में मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। तो गौशाला में नंद बाबा ने उनको लेकर आए, उनके चरण प्रक्षालन के, गुरु जी को उच्च आसन पर बिठाया और दोनों बालकों को लेकर आए। पर यहाँ पर दोनों बालकों की माता रोहिणी की, बलराम जो रोहिणी के पुत्र हैं और यशोदा के पुत्र कृष्ण, दोनों माताओं ने सोचा कि हमारे गुरु जी कितने समर्थ हैं, कितने कैपेबल है, हम थोड़ी परीक्षा तो करें। क्योंकि घણા લોકો ગુરુજીની પણ પરીક્ષા કરતા હોય કે આપણા ગુરુજી જાણે છે કે નહીં, એટલે એમની પરીક્ષા કરીએ કે ગુરુજીને ખબર પડશે કે નહીં। તો રોહિણીજી જે છે એમને લાલાને લઈ લીધું અને જે યશોદાજી છે એમને મોટા ભાઈને લઈ લીધું અને લઈને આયા ગુરુજી પાસે। તો ગુરુજીને પ્રણામ કર્યું। અનંતર गुरु केवा समर्थ होय तो गुरोर मौन व्याख्यानम शिष्य विगत संशय। गुरु का मौन व्याख्यान हो और शिष्य के हृदय के सभी संशय मिट जाए, ऐसे समर्थ गुरु गर्गाचार्य जी ने देखते ही कहा कि ये जो यशोदा जी के गोद में है वह बड़ा लड़का है और वह बड़ा लड़का है तो उसके नाम इतने सुंदर हैं कि वो संपूर्ण यादवों में एकता रखेगा और बल में वो सबसे विशाल होगा, इसलिए उसका नाम बलराम रखा है। तो बलराम जी का नामकरण हो गया। पर ये जो छोटा वाला है ये बड़ा धमाली है, बहुनी संधि नामानी, इसके बड़े अनेक नाम होंगे, जैसे गुण होंगे वैसे ही इसके नाम होंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इनके तो बड़े नाम हैं और हर बार इसके नाम नित्य नए निकलते जाएंगे, इसलिए उसी प्रकार इसके नाम है। पर ये कृष्ण वर्ण है। देखिए सतयुग में जब भगवान आए तो उनका रंग था श्वेत, त्रेता में जब भगवान आए तो उनका रंग था लाल, द्वापर में जब आए त्रेता में, और फिर द्वापर में आए तो उस समय उनका रंग था पीला, और कलयुग में जब भगवान आए तो उनका रंग था कृष्ण। तो कृष्ण यानी काला, तो काला रंग होने से उनका नाम कृष्ण रखा गया। कर्षयति आकर्षयति थी कृष्ण, जो सबके हृदय को अपने अंदर आकर्षित कर ले, इसलिए भी कृष्ण कहा गया, तो कृष्ण नाम रखा गया। अनंतर गुरु जी को वहां पर पूजन इत्यादि हुआ, गुरु जी को प्रस्थान करा दिया गया। अब भगवान घुटने चलने लगे हैं। आज भगवान घुटना चलते चलते आपने जो पगतलिन तने सुको उमरो, आज भगवान उमरोનું ઉલ્લંઘન કરવા જઈ રહ્યા છે, પણ વચમાં અટકી ગયા। અડધો શરીર પેલી બાજુ છે ને અડધો શરીર આ બાજુ છે ને મૈયાને જોઈ રહ્યા છે અને રડવા લાગ્યા કે મારું ઉલ્લંઘન મને પાર કરાવી દે, મારે બહાર જવું છે। તો જે ભગવાન બધાને સંસાર સાગર પાર કરાવતા હોય એ ભગવાન આજે એવી દશામાં છે કે અડધો શરીર એમને પેલી બાજુ છે ને અડધો શરીર આ બાજુ છે, વચમાં અટક્યા છે। યશોદા મૈયા કહે છે હજી લાલા તારી એવી ઉંમર નથી થઈ કે તું બહાર જઈ શકે। પછી લાલાએ થોડા મોટા થયા એટલે લાલાએ હવે ચાલવા લાગ્યા તો મૈયાએ શું કર્યું, આજુબાજુના જેટલા પણ ગોપ વૃંદો હતા, બાળકો હતા, એમને બોલાવ્યું અને સંપર્ક પરિચય કરાવ્યો કે ભાઈ આ મારો લાલો છે, એનું નામ કૃષ્ણ છે, આ એનો મોટો ભાઈ છે, એનું નામ બલદેવ છે। હવે તમે લોકો જ્યારે પણ રમવા જાઓ, યમુનાજીના કાંઠે જાઓ, ગૌચારણ કરવા જાઓ એટલે મારા આ બંને બાળકોને જોડે લઈ જાઓ। પણ તમે એને જોડે લઈ જાઓ તો એટલું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આવતી સમય એમને બંનેને જોડે પણ લેતા આવજો, કેમ કે એ લોકો કંઈ રહી જશે તો મારે તકલીફ, એટલે તમે એમને લઈને જજો અને લઈને મૂકીને જજો, એમ સંકેત આપ્યું। હવે ગોપ વૃંદો સાથે જ્યારે કાનો નીકળ્યો અને બલદેવ નીકળ્યો તો પહેલા ગયા ગૌશાળામાં, અને ગૌશાળામાં જઈને જોયું તો ગાયોના બછડા બહુ એકદમ સુકાયેલા લાગે, એકદમ પાતળા પાતળા બછડા। તો ભગવાનના મનમાં, લાલાના મનમાં એક વાત આવી। કૃષ્ણએ કીધું કે તમે બધા કેમ સુકાયેલા છો, તમે બધા એટલા પાતળા પાતળા કેમ છો, કે ખાતા નથી, ખાવાનું મળતું નથી। ત્યારે ગોપ વૃંદોએ કીધું કે લાલા તને ખબર નહીં કે આપણે ત્યાંથી જેટલું પણ માખણ મિશ્રી, જેટલું પણ છાશ, દૂધ, ઘી બધું થાય છે એ તો આપણને કરના રૂપમાં કંસને આપવું પડે, એટલે અમને એટલું બધું ખાવાનું ક્યાં મળે, અને આ ગૈયા અને બછડાઓ છે એમને પણ એટલું ખાવાનું કેવી રીતે મળે। તો
તો લાલાએ બહુ વિચાર કર્યો અને લાલાએ વિચાર કરીને આજે એક મંડળની રચના કરી છે. એ મંડળનું નામ રાખ્યું બાલ ગોપ ચોર મંડળ. એ મંડળનું નામકરણ કર્યું છે કે બાલ ગોપ ચોર મંડળ. આપણે પણ મંડળ બનાવીએ છીએ અને મંડળ કરતા આપણે કીટી વધારે બનાવીએ. કીટી હોય, કીટીનું નામ હોય, પછી એ કીટીમાં બધા ભેગા થાય અને પોતાના જે વડીલો છે એમની થોડી સ્તુતિ કરે, એમની થોડી ચર્ચા કરે, બધી ગમે તેવી ચર્ચાઓ થાય. પછી ચા કોફીને ખર્ચો કરે, એક એક વ્યક્તિ 2-3 હજારનો ખર્ચો ઓછામાં ઓછો કરે, નાસ્તો મંગાવે, એ બધું મંગાવે. ઠાકોરજીનું મંડળ છોડીને કીટીમાં જોડાવું એના કરતાં ઠાકોરજીના મંડળમાં અને ઠાકોરજીના ભક્તોની સેવા કરવામાં શું વાંધો છે? એટલે કીટી કરતાં મને એવું લાગે છે જેનું નામ જ કીટી હોય. કીટી કોને કહેવાય? કીટી કોને કહેવાય? हमारे ત્યાં તો કાનમાં કીટી હોય तो किटी એને જ કહેવાય. कान में जो मेल होता है उसको किटी बोलते हैं. એટલે કદાચ આ બધા કાનમાં વાતો ફૂસફૂસ કરે એટલે किटी હોય, એટલે નામ किटी રાખ્યું હોય. तो आवश्यकता है कि भगवान कितना सुंदर मंडल बनाकर हमको प्रेरणा देते हैं और वो मंडल क्या काम करता है, समाज के हित के लिए क्या काम करता है, ये भगवान के मंडल से सीखना चाहिए. तो भगवान ने बाल गोप चोर मंडल का निर्माण किया और इस मंडल का जो मुखिया है वो भगवान कृष्ण बने और सचिव बलदेव जी बने. और इसका स्थान जो है, मुख्य स्थान जो रखा वो गौशाला रखा कि किसी को भी कोई शिकायत हो, किसी को हृदय की कोई बात कहनी है तो वो गौशाला में आकर कहे. अब ये मंडल पूरे ब्रजमंडल में घूमता और जहाँ जहाँ इस प्रकार की यातनाएं जहाँ गोपवृंदों को हो रही है उनकी सहायता करता, मदद करता, माखन खाता, मिश्री खाता, तोड़फोड़ करता, सब कुछ करता. तो व्यास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात की. व्यास जी महाराज कहते हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास. वत्सान मुंचन, अब गोपियों के यहाँ जाकर माखन मिश्री खाता और वहां के उनके मटके तोड़ के आता तो सभी गोपियां आज भगवान को का उलाहना देने के लिए माता यशोदा के पास गई और माता यशोदा से कहती कि तुम्हारा बालक कैसा है, आपका बालक ऐसा है कि वत्सान मुंचन क्वचित समय, कोई भी समय आकर वत्सान मुंचन बछड़ों को छोड़ देता है. वैसे बछड़ों को सुबह और शाम को छोड़ा जाता है जब दूध निकालना हो, कि थोड़ा बछड़ा पिएगा तो गाय आंचल में दूध लाएगी, फिर हम लोग दूध लेंगे. पर ये तुम्हारा बछड़ा ऐसा है कि क्वचित असमय आकर, किसी भी असमय आकर बछड़ों को छोड़ देता है और ये गाय का पूरा दूध पी जाते हैं. क्रोध संजात हास, और जब हम इन पर क्रोध करती है तेरे बालक पर तो ये हंसता है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता. आपने कोई ने डांटी है यानी व्यक्ति दांत काटे, क्रोध संजात हास, तो क्यों था स्तेयम स्याद्वत् तदादिपयः कल्पिता स्तेय हो गई है. और यहाँ पर तो व्यास जी महाराज ने चोरी को भी योग बता दिया. ये चोरी जो है ना, ये कलयुग का प्रभाव है. चोरी है कलयुग का प्रभाव. यहाँ पर कई लोग जो है भगवान कृष्ण को आदर्श नहीं मानते कि भगवान कृष्ण तो चोरी की और भगवान कभी चोरी कर सकते हैं. नारायणो नाम नरो नराणा, तो वो आदर्श कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने चोरी की? तो यहाँ पर आगे कहा है कि स्तेयम स्याद्वत् तददिपयः कल्पिता स्तेय हो गई. और इसको चोरी की इतनी कलाएं आती है, इतने योग आते हैं, कई प्रकार के योग हैं, ध्यान योग है, सांख्य योग है, ये योग है, वो योग है, पर ये चोरी योग है. और ये चोरी कैसी है? आपके हृदय में बैठा जो अंधकार है, आपके हृदय में बैठा जो पाप है, उसकी चोरी है. तो स्तेयम स्याद्वत् तददिपयः कल्पिता स्तेय हो गई. और मर्कान भोक्षण, इसको इतने योग आते हैं कि अंधकार में आकर भी ये अपने हाथों में इसने कुछ मणियां पहन रखी है कि ये जहां भी जाता है उससे उजाला हो जाता है और अंधेरे में भी इसको पता चल जाता है कि वो मटका मक्खन का हमने कहाँ रखा है. और अपने साथ ऐसा डंडा रखता है कि जिसके आगे इतनी नुकीला है कि मटके को नीचे से ऐसे मारता है कि फूटती भी नहीं और वहां से पूरा मक्खन इसके मुंह में आता है.
तो इतने प्रकार की चोरी को इसने सीखा कैसे? अभी तो ये इतना छोटा है। और चलो कोई बात नहीं, ये खुद खाए, कोई व्यक्ति खाता है तो उसको खाने के लिए नहीं बोलना चाहिए, पर ये खुद खाता है, पर ये करता क्या है? मरकान भोक्षण। मरकान कहते हैं बंदरों को। ये बंदरों को भी बुला बुला कर उनका भंडारा करता है कि लो बंदर तुम भी खाओ। मरकान भोक्षण विभजति भांडम मिनति। और मरकों को, बंदरों को खिला दिया, गोपों को खिला दिया, खुद खा लिया। उसके बाद जो खाली मटका पड़ा, नाते भांडम भिनते, उन मटकों को फोड़ देता है। और मान लो कभी हम ताले में रख दें, अपने मक्खन को हम लोग कभी ताले में रख दें और इसको नहीं मिले, तो ये क्या करता है? उस समय ये आकर हमारे सोए हुए जो छोटे छोटे बालक हैं उनको चोटड़ी खोदता है। उसको चोटड़ी, हाँ, तो उसको चोटड़ी खोल खोल के उठाता है कि तेरी माँ कितनी कंजूस है, चिंगूस है, एक मक्खन को भी ताले में रखती है। एक मक्खन जैसे चीज को कोई ताले में रखता है क्या? इतनी चिंगूस है तेरी माँ। ऐसे करके हम उन बच्चों को जगा देता है, रुलाता है उनको। और जब हम कुछ कहते हैं तो ये हंसता है। तो आज हम पकड़ के लेके आए हैं, अब तू उसे उचित दंड दे। यशोदा मैया कहती है मेरे यहाँ कोई माखन मिश्री की कमी है, इतनी गाय है, मेरा बेटा तुम्हारे यहाँ जाकर माखन मिश्री क्यों खाएगा? तो सभी गोपियां एक स्वर में बोले नहीं नहीं ये खाता है, तुझे पता नहीं। तो अब मैया यशोदा ने चैलेंज दिया कि जो भी गोपी इसको रंगे हाथ पकड़ के लाएगी तो मैं स्वीकार करूंगी कि ये खाता है। अब गोपियों ने एक मंडल बनाया कि माखन चोर पकड़ो मंडल। तो गोपियां एक हो गई और एक चोर का, दूसरा चोर पकड़ने का मंडल हो गया। अब यहाँ पर प्रभावती नाम की एक गोपी है। उस प्रभावती नाम की गोपी ने बड़े विवेक से एक दिन क्या किया कि उसकी यहीं से भगवान रोज मुहूर्त करते थे, मुहूर्त वहीं से करते थे प्रभावती के यहाँ। तो आज भगवान, उसने सोचा कि आज भगवान नहीं आएंगे क्योंकि मैं शिकायत करके आई हूँ, पर कान्हा को कोई चैलेंज करे और कान्हा ना जाए, तो कान्हा वहीं पहुंच गया प्रभावती के यहाँ और शुभ मुहूर्त पर आ गया। तो दो चार लड़के नीचे खड़े, ऊपर उनके कान्हा खड़ा हो गया और मटकी को फोड़कर माखन। इतने में प्रभावती आ गई तो नीचे के जितने गोपवृंद थे वो तो भाग गए। अब कान्हा को नीचे उतारा गया और कहा तू बहुत माखन खाता है, आज देख तू रंगे हाथ पकड़ा है, मटकी भी तोड़ी है, माखन भी तेरे मुंह पे लगा है और हाथ पे भी लगा है। अब तुझे मैया यशोदा के पास ले जाती हूँ, अब देख तेरी मैया मानती है कि नहीं। तो कान्हा को पकड़कर ले जाने लगी और कान्हा को ले जाने लगी तो कान्हा सोचता है आज तो मैं पकड़ा गया, मैया बड़ी मारेगी मुझे, आज पकड़ा ही करो। पर कान्हा को नीति कुशल मानते हैं। मैंने कहा भगवान को यहाँ पर आदर्श नहीं मानते पर नीति कुशल मानते हैं। तो कान्हा इतना नीति कुशल है, कान्हा ने कहा कि गोपी तू मेरे को पकड़ के ले जा रही है, ये बात तो ठीक